আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এগৰাকী মহিলা হিচাপে বা এগৰাকী কিশোৰীয়ে নিজৰ যেতিয়া তেওঁ মেনষ্ট্ৰুৱেল পিৰিয়ডটো পাৰ কৰে তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁৰ জীৱনটোৰ বহুখিনি শাৰীৰিকভাৱে বা মানসিকভাৱে সলনি হৈ পৰে। কিছুমান হৰম'নেল চেঞ্জ আহে, আমি বহুখিনি সমস্যা আমি পাৰ কৰিব লাগে। তাৰ ভিতৰত PCOD পৰা আৰম্ভ কৰি পিৰিয়ড ক্ৰেম্পছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি বহুত সমস্যা আমি পাওঁ। গতিকে এই সমস্যাসমূহৰ সমাধান বুলিবলৈ বা আমি যেতিয়া এগৰাকী চিকিৎসকৰ কাষলৈ যাওঁ তেওঁ আমাক কেনেধৰণে সমাধান দিব পাৰে এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিম বা আমি কেনেধৰণে আমি নিজৰ আমি কেয়াৰ ল'ব পাৰোঁ সেই সন্দৰ্ভতো আমি কথা পাতিম। আৰু আজি আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। মই প্ৰথমতে তেওঁৰ পৰিচয়টো দি ল'ব বিচাৰিম, তাৰপিছত তেওঁক আমি আপোনালোকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিম। তেওঁ এগৰাকী যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক, তেওঁ এগৰাকী গাইনেকলজিষ্ট, স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ। তেওঁৰ কথা যদি কওঁ তেওঁ এগৰাকী ৰবটিক চাৰ্জন হয় আৰু লগতে তেওঁ লেপ্ৰস্কপিকৰ তেওঁ বিভাগৰ। আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁ ক'ত সেই শিক্ষা ডিপ্ল'মা লৈ আহিছে সেই সন্দৰ্ভতো ক'ব বিচাৰিম। তেওঁ জাৰ্মানী আৰু ৰবটিক ট্ৰেইনিং তেওঁ লৈছে USAত। গতিকে বিশিষ্ট চিকিৎসকগৰাকী অৰ্থাৎ মীনাক্ষী সুন্দৰমৰ সৈতে আমি আপোনালোকক পৰিচয় কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আশা কৰিম যে মীনাক্ষী সুন্দৰমে যিখিনি আপোনালোকক বা আমাক আজিৰ দিনটোত তেওঁ যিখিনি এডভাইচ দিব বা যিখিনি কথা তেওঁ ক'ব সেই কথাখিনি সেই উপদেশখিনি আমাক অনাগত সময়ছোৱাত আমাৰ মহিলা বা নাৰীসকলক যথেষ্ট সুবিধা কৰি তুলিব। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार मैम। और बात ये है कि आपसे मैं इंग्लिश और हिंदी में मिक्स सवाल करूंगी, है ना? Thank you. और हमारे जो दर्शक हैं वो एसएमएस में भी है और फिर अदर लैंग्वेज में भी है, तो हर एक के लिए वो एक सुविधा हो जाएंगे और मैं उसको ट्रांसलेट भी करवा दूंगी, ठीक है? Thank you. तो मैं आपके जो क्वेश्चंस है वो मुझे मिले हैं, लेकिन मैं इसमें और एक ऐड करना चाहूँगी। ऐड में मेरा जो क्वेश्चंस है वो मैं पहले ऐड करना इसलिए चाहूँगी क्योंकि ये एक जो हम जैसे मतलब जो वुमेन्स है पहले हम जब अपना पीरियड क्रॉस करते हैं, मान लीजिए कि 12 और 13 एज में हम होते हैं और जो मेनस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं तो उस टाइम पे मतलब हाउ शुड ए वुमन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ आफ्टर हर मेनस्ट्रुअल पीरियड, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो हम कैसे अपने आप को तैयार करेंगे उस वक्त के लिए, इस वक्त के लिए थोड़ा सा आप अगर उसमें बता देंगे तो अगर आप देखते हैं तो पहले मेंस्ट्रुअल एज वो मेनार्की जो बोलते हैं, पहली बार जब एज अटेंड करते हैं वो नॉर्मली पहले 12-13 इयर्स था, लेकिन आजकल के बच्चे ऑलमोस्ट 9-10 इयर्स में भी वो मेनार्की आ जाता है। सो दिस इज़ वन थिंग। सडनली अगर उनको एक दिन ब्लड दिखता है तो इट बिकम्स वेरी स्केरी फॉर देम। तो पेरेंट्स स्पेशली द मदर्स बच्चे से बात करना चाहिए, उनको पता करना चाहिए कि these are the normal changes that can happen because we do a lot of education in schools. So even doctors, healthcare educators, we tell in schools about the fact that menarche can occur between 9 years, 10 years and 11 years. So you have to mentally prepare them because for a girl to suddenly start seeing blood can become scary. So it is important that right from the age of 8 years उनको थोड़ा सा जानकारी की ज़रूरत है कि ऐसा हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होता है, पीरियड्स शुरू होगा, फिर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, हेयर डेवलपमेंट होगा। ये सब बच्चों को द मदर्स हैव टू टॉक एंड ऑल्सो इफ़ दे आर एबल टू मीट देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वी हैव टू एजुकेट दीज चिल्ड्रन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वंस दे स्टार्ट गेटिंग पीरियड्स वो हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उनको ये भी सिखाना है कि जब पैड्स यूज़ करते हैं एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स हर टाइम पैड चेंज करना चाहिए और उनको सिखाना है कि दे हैव टू टेल कि ब्लीडिंग कब हैवी होता है, कब लाइट है या टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट एजुकेशन दैट हैज़ टू बी गिवन टू द गर्ल्स टू प्रिपेयर देम टू गेट देयर मेंस्ट्रुअल साइकल्स। हाँ, সঁচাকৈ আমি আমাৰ মাতৃ হিচাপে আচলতে বা অভিভাৱক হিচাপে আমি আমাৰ শিশুটি বুলিয়ে কৈছোঁ, কাৰণ ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে যে 8 to 9 ইয়াৰ্ছ মানে 8 বছৰৰ পৰাই আজিকালি যিহেতু পিৰিয়ডছ বা অসুবিধা হয়, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এগৰাকী মাতৃৰ হাতত বহুখিনি কৰণীয় থাকে যাতে আমি তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব পাৰোঁ। গতিকে সেই বুজনিৰ মাজেৰে গ'লে তেওঁলোকে সেই যিবোৰ ডিপ্ৰেশ্যন সেইবোৰ নাহে। डिप्रेशन वन ऑफ अ मैटर डिप्रेशन है ना, वो भी हो जाता है मतलब। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन पे आती हूँ।
जो कि देखा जाता है कि हैवी ब्लीडिंग, पेनफुल पीरियड, पीसीओडी, पेनफुल पीरियड, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है जब क्रैम्प्स आते हैं। तो ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं या फिर हम बड़े लोगों को भी ये जो क्रैम्प्स आते हैं या फिर पेनफुल जो पीरियड होता है, तो उस टाइम को मतलब ऐसा लगता है कि हाँ वो आ गया है, मतलब उसको मैं कैसे फेस करूँगी। अभी ये 20 तारीख को या 26 तारीख को आने वाला है, तो मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपसे इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सो पेनफुल पीरियड्स, सो नॉर्मली हर पीरियड्स के टाइम पे कोई लोगों को बिना कुछ कारण थोड़ा सा पीरियड्स के टाइम पे पेन हो सकता है। दिस कैन बी फेमिलियल ऑल्सो, जैसे मम्मी को होता था, उनके ग्रैंडमदर को होता था। थोड़ा सा पेनफुल पीरियड्स किसी किसी को हो सकता है। जब हम टेस्ट करके देखेंगे तो सब कुछ नॉर्मल भी रह सकता है। बट एनी पेन दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम योर रेगुलर एक्टिविटीज़, सडनली बच्चे बोलते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है उस दिन, या फिर आप ऑफिस नहीं जा पाते हो उस दिन, या यू आर नॉट एबल टू डू योर रूटीन एक्टिविटी, दैट पेन इज सिग्निफिकेंट। जो नॉर्मली होता है इट इज़ जनरली टॉलरेबल, विमेन गेट यूज टू इट। लेकिन जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ प्रिवेंट करता है वो पेन इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो ऐसा कुछ पेन है जो आप वो फर्स्ट डे सेकेंड डे को घर पे रहना चाहते हो, यू आर नॉट एबल टू गो टू वर्क, यू हैव टू गो एंड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। तो फिर वो टेस्ट करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिस वजह से ये पेन हो रहा है, एंड दे कैन गिव यू द राइट ट्रीटमेंट फॉर द सेम। क्या हम अपने इस टाइम में रेस्ट लेना ज़रूरी होता है क्या इस टाइम पे? या सी व्हाट हैपेंस इज पीरियड्स के टाइम पे जो हार्मोन चेंजेस होता है उसमें बॉडी में देयर इज़ अ जनरलाइज्ड sense of weakness, you can say. Sometimes because of the bleeding the hemoglobin can drop. So these things make sometimes the people feel that they want to take rest on the first day of the periods or on the day of the heavy flow. Normally if you see normal periods may you don't have to really take off from your work or you don't really need to take rest. But अगर वो एक दिन आपको ज़रूरत ही पड़ा, there is nothing wrong in taking a break for that one day for making yourself feel better about it. अब हम पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। तो पीसीओडी which age group is it common? और दूसरी बात ये कि पीसीओडी जो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी इश्यूज होती है, हमने देखा भी है या फिर एक्सपीरियंस भी है कि पीसीओडी जो होते हैं तो ये जो जर्नी होते हैं ये थोड़ा सा तकलीफदायक होते हैं मतलब। तो आप हमें ये बताइए कि इसकी जो ट्रीटमेंट है या फिर इसकी जो फूड हैबिट्स है या फिर हम जो डे टू डे लाइफ में हमको क्या करना चाहिए, इस सब कुछ। सो बेसिकली पीसीओडी अभी आजकल के बच्चों के लिए इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, सब स्कैन में वो पकड़ जाता है। इट इज़ यूजुअली कॉमन इन द एडोलेसेंट एज ग्रुप। तो 13-14 ईयर्स से पीरियड्स का जब इरेगुलरिटी है स्कैन करेंगे तो द कॉमनेस्ट थिंग दैट कम्स इन स्कैन इज अ पीसीओडी। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जो स्कैन में अल्ट्रासाउंड में दिखता है कि जो ओवरीज है उसमें छोटे छोटे दाने जैसे सिस्ट रहते हैं, इट्स वेरी कॉमन। This can cause irregular cycles. So first problem is periods टाइम पे नहीं होता है, 1 महीना 2 महीने के बाद periods हो सकता है। The second problem they have is weight gain. Typically PCOD का जो बच्चे हैं, पेशेंट्स हैं, उनको वेट गेन एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम होता है। थर्ड थिंग इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, हर्स्यूटिज्म बोलते हैं, दैट मीन्स जो बाल अपर लिप पे या साइड में या ब्रेस्ट के अराउंड तो छोटा छोटा सा बाल दिखता है, विच इज़ समटाइम्स इन अ यंग एडोलेसेंट गर्ल कैन बी वेरी डिस्टर्बिंग, जो दे स्टार्ट सीइंग हेयर ओवर द अपर लिप एंड ऑल दैट. सो दीज आर सम ऑफ द changes seen in PCOD. PCOD is basically a hormonal condition. It's a hormonal imbalance that happens. Most of the time it can be corrected with changes in your lifestyle. So young girls especially, आजकल के बच्चे, they are always behind junk food, fast food. So that is something we have to educate them, mindful eating. So you have to tell them कि हफ्ते में एक cheat day ठीक है, one day you can have junk food. But बाकी का 6 days you should eat healthy. You should have a lot of vegetables. You have to, eat whatever your ancestors have eaten, the regular food. That
वो आपका वेट को कंट्रोल में रहेगा. जब वेट कंट्रोल में रहेगा आपका पीरियड्स का पैटर्न कंट्रोल में रहेगा. एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट पॉलिसिस्टिक ओवरीज, because many hormonal medications are there to treat them to get the periods to normal. But if you want to be without medications, तो थोड़ा टाइम हम टैबलेट्स दे सकते हैं पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको पीरियड्स रेगुलर होना है, आपको वेट कंट्रोल में रहना है, तो योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेन थिंग स्लीप. Many a times because of the work pattern, because of the studying pattern, sleep is compromised. Sleep is also another important thing जो hormones को disturb करता है और PCOD का symptoms को बढ़ाता है. तो that is also something that is very important. You need to have at least 7 to 8 hours of sleep for you to take care of these hormonal issues. और एक क्वेश्चन है, does PCOD need surgery? PCOD usually does not need surgery unless देर इज़ एसोसिएटेड इनफर्टिलिटी. मतलब जिनको बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं बहुत साल से, उनको यूट्रस ट्यूब्स और ओवरीज चेक करना है और उनका इरेगुलर साइकिल्स है, ओव्यूलेशन बराबर से नहीं हो रहा है, तो उनको ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज को ड्रिलिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है. मतलब हम पेट में दूरबीन डाल के माइक्रो सर्जरी से जो ओवरी में छोटे छोटे दाने जैसे सिस्ट है उसको फोड़ते हैं. उसके बाद उनका ओव्यूलेशन बेटर रहता है. नॉर्मली यंग गर्ल्स को पीसीओडी का कुछ सर्जरी की ज़रूरत नहीं है. द सर्जरी क्वेश्चन कम्स ओनली व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रीट देम फॉर फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स. फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आपने बताया है, तो हम क्यों ना उस बारे में थोड़ा सा बात करें, क्योंकि फर्टिलिटी की जो इश्यूज़ है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. तो ये आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से और एक मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. हम थोड़ा सा उसमें जानना चाहेंगे, फर्टिलिटी के बारे में भी जानना चाहेंगे, और फिर ये पीरियड्स कितना इफ़ेक्ट करता है फर्टिलिटी को वो भी जानना चाहेंगे. साथ में अगर आप हमें ये भी बता दें कि इनफर्टिलिटी कैन इट बी मैनेज बाय सर्जरी, इन ये सब के बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे तो हमारे दर्शकों के लिए ये सुविधा होगी शायद. सी फर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स इफ़ यू सी आजकल बहुत ज़्यादा है. क्यों? मोस्ट ऑफ द टाइम women want to get married late. Pregnancy they want late. Because of all these, the natural ovulation धीरे धीरे से कम होता जाता है with age. If you see 30 years के बाद ovulation का कम हो जाता है. After 35 years it becomes more difficult. But most of the time, because women want to pursue their career, their studies, they get married late. And after marriage they want to get settled and then they want to plan pregnancy. ये सब की वजह से ये fertility का issues हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा देखते हैं. So fertility issues most of the time, if we identify कि किस वजह से हो रहा है, whether periods regular नहीं है, ovulation बराबर नहीं है, उस वजह से हो रहा है, या फिर यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे किसी को यूट्रस जुड़वा जैसा रहता है या पर्दा जैसा रहता है, या किसी को यूट्रस में ट्यूमर रहता है, या ओवरी में सिस्ट रहता है, या ट्यूब में कुछ ब्लॉकेज रहता है. ऐसे सिचुएशंस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी फर्टिलिटी इश्यूज़ के लिए, जो यूट्रस का अबनॉर्मैलिटी को करेक्ट कर सकते हैं. अगर यूट्रस में कुछ ट्यूमर है उसको निकाल सकते हैं, या फिर ओवरी में सिस्ट है उसको निकाल सकते हैं, और ट्यूब में अगर ब्लॉक है तो ट्यूब को खोल सकते हैं. ये सब कराने से फर्टिलिटी का रेट बढ़ जाता है. द सेम पर्सन हु इज़ बीन ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर हम ये सब करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट की प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से हम सर्जरी ऑफर करेंगे तो उनका फर्टिलिटी रेट डेफिनेटली बढ़ता है. और एक है व्हाट इज़ की होल सर्जरी विच पेशेंट नीड, तो इस बारे में भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे. सो इफ यू सी एनी प्रॉब्लम्स फॉर विमेन, पहले कैसा था कि एक बड़ा सा इंसेशन लेके ऐसा या वैसे काट के करना पड़ता था, तो रिकवरी विल बी यूजुअली 2 months 3 months, पेशेंट्स विल हैव पेन, एंड उसी की वजह से बहुत सारे टाइम विमेन अपने प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा वेट करते हैं. बच्चों का लीव के लिए या हस्बैंड का लीव के लिए दे पोस्टपोन देयर ट्रीटमेंट. बट नाउ विथ की होल सर्जरी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनिमल एक्सेस सर्जरी, विमेन को उतना टाइम वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैनी प्रोसीजर्स हम लोग डे केयर सर्जरी भी करते हैं. मतलब सुबह एडमिट करके सर्जरी करा के उसी दिन शाम को डिस्चार्ज करेंगे या अगला दिन डिस्चार्ज करेंगे.
पेशेंट्स कम बैक टू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज द वेरी नेक्स्ट डे। 2-3 दिन में जो भी पहले करते थे सब एक्टिविटीज नॉर्मली हो जाता है, सो दे कैन get back to their routine very fast. So these are through minimal access surgery और minimally invasive surgery. पेट में छोटा छोटा फुटा करके दूरबीन डाल के अंदर से करते हैं. So there are 2 types of the minimal access surgery now. One is laparoscopic surgery and the other one is robotic surgery. Now both these surgeries reduce the pain. जो पेन होता है वो कम रहता है, तो इसीलिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी कम रहता है, पेन किलर्स की ज़रूरत कम रहता है, ब्लीडिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर इज लेस एंड दे कैन गेट बैक टू एक्टिविटीज. हाँ, आप एक रोबोटिक सर्जन भी है, तो ये जो रोबोटिक सर्जरी है इसके बारे में मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग जितनी भी जगह है वहाँ पे शायद लोगों को इस बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन हम बड़े मतलब इस बारे में अगर मैं आपको, जब हमारा शो शुरू हुआ ही नहीं था तो मैंने आपको पूछा था कि रोबोटिक सर्जरी कितना मतलब अच्छा होता है हमारे लिए और कितनी ये पेनफुल नहीं होता है और साथ में ये कितना एडवांस स्टेज में है. तो मैं चाहूँगी कि मेरी तरह शायद और बहुत लोग हैं जो जानना चाहेंगे, और ज़्यादातर कि यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ हमारे स्टेट में मैं बता रही हूँ, तो ये रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपसे. मतलब श्योर. सो रोबोटिक सर्जरी, जब मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ रोबोटिक सर्जरी ये अच्छा रहेगा, तो पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं, आप नहीं करोगे क्या सर्जरी, कोई रोबो करेगा? सो दैट्स द फर्स्ट मिथ आई वांट टू ब्रेक. सो द रोबोटिक सर्जरी इज डन बाय द सर्जन ओनली. सर्जरी तो हम ही करते हैं. वी यूज स्पेशलाइज्ड एडवांस्ड इक्विपमेंट्स. सो दीज आर द रोबोटिक इक्विपमेंट्स. ये इक्विपमेंट से क्या होता है कि द प्रिसिशन ऑफ सर्जरी बिकम्स वेरी वेरी गुड. जो हम 3D, आपको पता है कि पहले 2D फिल्म्स था, अभी जब 3D में फिल्म देखते हो तो उसका डेप्थ कैसा अप्रिशिएट कर सकते हैं, वैसे ये सर्जिकल एडवांस टेक्निक में जो विजन हमको मिलता है वो 3 डायमेंशनल है. मैग्निफिकेशन इज़ ऑलमोस्ट 10 टाइम्स. इस वजह से जो हम देखते हैं और करते हैं उसका प्रिसिशन बहुत ज़्यादा होता है. इस वजह से पेशेंट्स को ब्लीडिंग बहुत कम रहता है सर्जरी के टाइम पे, पेन बहुत कम रहता है सर्जरी के बाद में. सो द रोबोटिक इज जस्ट एन एडवांस्ड सर्जिकल इंटरफेस. जैसे कि हम एक कंसोल में बैठते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स मूव करते हैं और वो आर्म्स पेशेंट्स के अंदर मूव करता है. दिस इज कम्प्लीटली डन बाय द सर्जन एंड नॉट बाय एनी रोबो. द रोबोटिक इज ओनली एन एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन which helps in making the surgery much better for the patient. So any surgery robotically कर सकते हैं आजकल. Any surgery can be done by robotics. The pain will be less, the bleeding will be less. Patients are very comfortable, and definitely for very complex procedures, patients should opt for robotic surgery क्योंकि outcome बहुत अच्छा रहता है. अब मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है, ऑडियंस है, उनके मतलब दिमाग में या दिल में ये सवाल ज़रूर उठेंगे कि ये जो रोबोटिक सर्जरी इसका कॉस्ट कितना हो सकता है. या सो डेफिनेटली कोई भी एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन या कोई भी एडवांस प्रोसीजर्स दे कम विद अ कॉस्ट. So if you see, it is not so high that it cannot be afforded. So there is a marginal difference between laparoscopic and robotic surgery, which is mainly the cost of the equipments involved in robotic surgery. So wherever you get it done, शायद वो if I have to say in numbers, laparoscopy से 75,000 rupees extra हो सकता है robotic surgery के लिए. हम लेप्रोस्कोपी ना करके रोबोटिक क्यों करें? मतलब अगर हम रोबोटिक सर्जरी के बारे में ही बात करें तो हम लेप्रोस्कोपी ना करके क्यों हम रोबोटिक करें? मैं नहीं बोल रही हूँ कि लैप्रोस्कोपी नहीं करना है. सो देयर आर सम इंडिकेशंस फॉर व्हिच लैप्रोस्कोपी ओनली हैज टू बी डन. ज़्यादा सेफ होंगे? दोनों सर्जरी सेफ है. सर्जरी का सेफ्टी तो सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है. सो लैप्रोस्कोपी सिंपल प्रोसीजर्स के लिए लैप्रोस्कोपी काफ़ी है, रोबोटिक की ज़रूरत नहीं है. रोबोटिक इज़ मोर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज. किसी किसी को सर्जरी 3-4 बार हो चुका होता है एंड देन दे कम फॉर अ रिपीट सर्जरी. और मेलिग्नेंसी सर्जरी के लिए, जैसे कैंसर का सर्जरी होता है, जब रोबोटिक से करते हैं जो मैग्निफिकेशन मिलता है बहुत अच्छा है, जो नर्व्स दिखता है बहुत अच्छा है. तो सर्जरी का आउटकम
वो जो सर्वाइवल रेट बोलते हैं, मार्जिन्स बोलते हैं, वो सब आउटकम इज़ वेरी बेटर विद रोबोटिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपी का खुद का इंडिकेशंस है, जैसे किसी को इन्फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, बस देखना है कि यूट्रस ट्यूब्स कैसा है, ओवरी का ड्रिलिंग करना है, तो उसके लिए रोबोटिक की ज़रूरत नहीं है। लैप्रोस्कोपी इज़ गुड इनफ। लैप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक आर टू डिफरेंट ways of doing the same procedure, but the surgeon should decide कि कौन सा सर्जरी कौन सा पेशेंट के लिए सही है। It can be laparoscopy, it can be robotic, both can be safely done. There are specific indications for robotic surgery और सर्जन बराबर से डिसाइड करते हैं कि लैप्रोस्कोपी चाहिए या रोबोटिक चाहिए। रोबोटिक चाहिए, अच्छा। तो मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। और फिर और रोबोटिक सर्जरी के बाद एक पेशेंट को कितने दिन रहना पड़ता है? हॉस्पिटल में एक ही दिन। हाँ, हम तो सुबह में पेशेंट्स को एडमिट करके उसी दिन शाम को डिस्चार्ज करते हैं या अगला दिन सुबह डिस्चार्ज करते हैं। सो इट्स ओनली अबाउट 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन। द रिकवरी इज़ वेरी फास्ट because the pain is very less. Patients don't even feel कि सर्जरी हुआ है। जब पेशेंट्स को नेक्स्ट डे राउंड्स पे जाके देखते हैं, हमको ही लगता है क्या ये पेशेंट को सर्जरी हुआ है क्या। सो दैट काइंड ऑफ रिकवरी यू विल सी। मतलब हम अगर कहे तो हम वुमेंस के लिए बहुत सारे इस टाइप के ट्रीटमेंट आ चुके हैं अब। तो हम हर स्टेट में शायद थोड़ा सा लेटली क्यों ना हो, लेकिन ऐसे मतलब ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि हमें इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले ही कहा था कि हम जो ह्यूमन्स हैं, हम अपने दर्द को पहले बहुत लेट हम बताते हैं। मतलब हम पहले अपने दर्द को छिपा लेते हैं, उसके बाद हम इसको बोलते हैं कि हाँ मुझे ये हुआ है, ये हुआ है। तो अभी हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, बस हमको आगे बढ़ना है। और जाते जाते मैं आपसे और एक सवाल करूँगी जो कि मैंने ऐड किया है, वो है कि अभी धीरे धीरे हमने जब पीसीओडी के बारे में बात की, हमने पीरियड्स के बारे में बात की, हमने क्रैम्प्स के बारे में बात की, हमने फर्टिलिटी के बारे में भी बात की, और हमने ये रोबोटिक सर्जरी के बारे में भी बात की। तो जाते जाते हम ये भी बता दे दर्शकों को, और आपसे भी हम जानेंगे कि मेनोपॉज की जो स्थिति होती है औरत की, तो उस बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी दे। क्या वो ऐसा हम क्या मान ले कि सम पीपल थिंक दैट मेनोपॉज मीन्स एवरीथिंग इज फिनिश इन योर लाइफ? Yeah, so menopause is a very very important stage in a woman's life. जैसे मेनार्की होता है, जैसे मैंने बताया था कि पीरियड्स कैसे फर्स्ट बच्चों के लिए आते हैं, हम उनको जानकारी देते हैं, वैसे मेनोपॉज भी है, क्योंकि आवर बॉडी इज़ यूज्ड टू हार्मोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और सडनली व्हेन ओवरी का फंक्शन कम होता है और वो हार्मोन कम रहता है, देन द बॉडी स्टार्ट्स अंडरगोइंग सर्टेन चेंजेस। जनरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सब पेशेंट्स जो बोलते हैं इज़ मूड डिस्टर्बेंस। उनको ऐसा मूड का बहुत चेंज होता है, देन दे फील दे आर गेनिंग वेट, वॉट एवर दे ट्राई, वेदर यू नो दे आर ऑन डाइट, दे आर एक्सरसाइजिंग, दे आर गेनिंग वेट, and you know the skin is changing, there are some pigmentation in the skin, baal charte hain, that everything is finished. Yeah, so it kind of you know starts making you feel कि शायद एज हो रहा है, वैसा कुछ इफेक्ट यू नो यू स्टार्ट गेटिंग, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई थिंक मेनोपॉज इज़ अ वेरी वेरी ग्रेसफुल पीरियड। अगर हम अच्छे से उसको एक्सेप्ट करते हैं, you seek medical help, you talk to your gynecologist, you talk to the health, you have more awareness, then definitely you can take this period very gracefully. You need to work a lot on yourself, like weight gain, which everybody complains of. I think a lot of attention to your फिज़िकल एक्टिविटी वेरी इम्पॉर्टेंट। women बहुत टाइम वो फॉरगेट करते हैं कि जैसे men को फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत है, women को भी ज़रूरत है, क्योंकि जब एज होता है you start losing muscle mass. So that's called sarcopenia. You should not be losing muscle mass. You should be working on yourself to at least 3 to 4 times in a week if you work on yourself physically. It need not be like going to the gym. It can be, you know, just simple walking. It can be anything favorite to you, like, you know, you can do Zumba, you can do swimming, you can do dancing, anything that with some physical fitness you start getting into. आपका हार्मोन चेंजेस में काफ़ी सारे चेंजेस होता है, एंड मेनोपॉज का जो पीरियड है, जो ट्रांसिशन है, यू आर एबल टू एक्सेप्ट मच बेटर. सेम वे विथ योर फूड हैबिट्स. If you have very clean, mindful eating, that's what I call. You know, you should know how much you're eating, what kind of food you're eating. All this will help you.
combat this phase of menopause and all these changes like weight gain, mood instability, everything you can tackle very gracefully. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, and it was lovely being here with you. Thank you. Thank you. Namaskar. নমস্কাৰ আৰু আমি এনেধৰণে আমাৰ অনুষ্ঠানটি এতিয়া সামৰণি মাৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় সুবিধাসন্মতভাৱে আমি প্ৰশ্নখিনি কৰিছোঁ বুজি পোৱাটো বৰ বিশেষ এটা নিশ্চয় অসুবিধা নাই হোৱা গতিকে এনেকৈয়ে আচলতে আমি মহিলাসকলৰ বাবে বহুখিনি ট্ৰিটমেণ্ট আহিছে চিকিৎসা আহিছে তাৰ মাজত আমি ৰবটিক চাৰ্জাৰীৰ কথা বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে ই আমাৰ বাবে নিশ্চিত ৰূপত সুবিধাসন্মত আপুনিও নিশ্চয় যথেষ্টখিনি আচলতে এইখিনি শুনাৰ পিছত আপোনাৰ বাবেও সুবিধা হৈ পৰিব ইয়াৰ সৈতে আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ